Organized coming down. This is a national number. So nationally, the food service sector in India is at roughly 46%, 46.9% organized, and roughly 53% unorganized. This will reverse in the next 3 to 4 years. Surprisingly, Calcutta is 55% organized already. So Calcutta is growing faster in the organized sector as compared to the rest of the country. So I will not be surprised to see more organized growth happening in Calcutta, because I think you are seeing so many startups in the F&B space coming in. You are seeing so many restaurants open. On an average, you are seeing almost between 20 to 25 restaurants open in Calcutta per month. And the closures are to the tune of maybe 5 to 10. Nationally, the closure rate is much higher. So I think in Calcutta, people understand their food. They exactly know when to eat, what to eat, and if you have the right location, the right cuisine, the right target audience, I don't think you should fail in the food space if your product is really nice. So I will not be surprised. Yes, it is one of the food capital of the country. Street food will thrive, but even a street vendor today is delivering online. Now, what do we call organized to define it? Anyone who has a food license is organized for us. And even the street vendors are getting organized in today's day and age, to the extent that they are maintaining hygiene, they have licenses in place, they are delivering through aggregators like Swiggy, Zomato. So, for example, when there were data points that you mentioned that Zomato had some 9,000 restaurants registered in Kolkata a decade back. Today it's plus 30,000. That's huge. That's massive. So post-COVID, report is showing growth. Industry has grown from, it came down to 2 lakhs, from that it has come to 5.9. So there is a huge role of this tier 2 and tier 3 cities, because there is a current huge change in consumer behavior and everything there. So do you have any kind of vis-a-vis growth data with tier 1 versus tier 2, tier 3? Yes. So the top 9 cities contributes to 59% of the food service sector in India at the moment. The next between 10 to 40 is the next level of growth, which 21% comes from there. However, like I mentioned in my presentation, that earlier the tier 2, tier 3 cities were growing at a faster CAGR, but the organized there was only 20%. Today, the organized there has also gone to 40%. So a lot of entrepreneurship or foodpreneurs are coming in this tier 2, tier 3 cities. This is a very encouraging sign for us. National chains are going deeper, and they are finding new markets in tier 2 and tier 3. So I mean, including Sagar and Momo. But if you look at all the international QSRs who have sort of come into the city, if you look at Starbucks, they are, who would have thought people would pay 200, 300 rupees for a cup of coffee, right? But they are, if you look at the markets that they are going into, are all tier 2, even sort of quasi tier 3 as well, right? I was surprised to know that Starbucks is there in 62 cities. And Domino's is selling a 300 rupee pizza in more than 300 cities. It's very interesting points. ने कहा कि कलकत्ता ऑलरेडी 8,000 पे है, 8,000 करोड़ मार्केट शेयर पे है, नंबर 7 पे है। मेरे ख्याल से कलकत्ता टॉप 4 में आ सकता है बहुत ही जल्द। हमारे को क्या चाहिए, हमारे को थोड़ी सपोर्ट चाहिए इस्टेब्लिशमेंट से, गवर्नमेंट से, और ये सपोर्ट मिल भी रही है। तो अगर आप देखोगे कलकत्ता 5,000 से 8,000 बहुत जल्दी आया, तो आई एम श्योर हम 10,000 बहुत जल्दी पार कर सकते हैं। उससे भी ज़्यादा मुझे लगता है कि जो अच्छी फिगर हमारे लिए है कि कलकत्ता 55% ऑर्गेनाइज सेक्टर पे हैं। तो मतलब लोग यहाँ पे कॉन्शियस हो रहे हैं अपने आप को हाइजीनिक एनवायरनमेंट को डेवलप करने के लिए, और मुझे ये लगता है कि कलकत्ता फूड कैपिटल ऑफ द कंट्री है। एक और चीज़ मैं ये भी मानता हूँ, बहुत फर्मली मानता हूँ कि आप आजकल फूड सर्विस सेक्टर क्यों इतना बढ़ रहा है? इसलिए भी बढ़ रहा है बिकॉज लोग बाहर जाना पहले भी जा रहे थे, अभी भी जा रहे हैं, बट लोग घर में खाना बंद कर रहे हैं, लोग बाहर से खाना ऑर्डर कर रहे हैं। अब कलकत्ता एक ऐसा शहर है कि जहाँ हम हमारे घर में भी अच्छा खाना बनाते हैं। तो कलकत्ता नंबर 7 में, इसका मतलब ये नहीं कि हम पीछे हैं, इसका मतलब ये भी है कि हमारी कलनरी स्किल, हमारी कलनरी नॉलेज रेस्ट ऑफ द कंट्री से काफ़ी हाई है। और ये भी हमारे रिसर्च से निकल के आया कि
लोग कलकत्ता में घर में खाना ज़्यादा खाते हैं, घर का बना हुआ खाना. So that means people at home, including me, will still prefer eating घर का खाना या माँ के हाथ का खाना than wanting to go out. हालांकि मैं इस इंडस्ट्री से मैं ये कह रहा हूँ. जो बदल रहा है डिफरेंट कारण के लिए बदल रहा है, जैसे कि लोगों को कन्वीनियंस चाहिए या लोगों को जिसकी मैंने कहा कि बहुत सारे अभी यंग पॉपुलेशन है जो जेन ज़ी हैं जो टाइम देखकर काम नहीं करते हैं, मतलब वो टाइम के स्लेव नहीं है, वो टाइम को अपने तरीके से चलाते हैं. कलकत्ता में बहुत जन बैठ के आईटी बिजनेस कर रहे हैं जो यूएस के लिए काम कर रहे हैं, मतलब यूएस कंपनीज के लिए काम कर रहे हैं, तो वो पूरा रात जागते हैं. अभी हमारा एक सिलिकॉन वैली हब आ रहा है न्यू टाउन में, उसमें कुछ 4 या 5 लाख जॉब्स क्रिएट हो रहे हैं आईटी सेक्टर में. वो उस हब में लोग दिन में भी काम करेंगे, रात में भी काम करेंगे, 2 शिफ्ट में काम करेंगे. तो समय बदल रहा है और समय के साथ आई थिंक हमारा शहर भी बदल रहा है. हमारी गवर्नमेंट बहुत कुछ कर रही है, ममता दीदी बहुत प्रोएक्टिव है. जैसा कि आपको पता होगा कि 21 एंड 22 सितंबर को एक शॉपिंग फेस्टिवल हो रहा है बंगाल में. उस शॉपिंग फेस्टिवल में दीदी ने मुझसे कहा कि आप वो जो फूड फेस्टिवल है उसको भी इंक्लूड करिए. तो आई थिंक एनआरआई उसमें भी पार्टिसिपेट कर रही है और हम इसको भी बड़ा करेंगे. एंड द शॉपिंग फेस्टिवल आई थिंक 2 दिन के लिए मिलन मेला में रहेगा, बट up to Durga Puja it will be there in every market, every shopping mall of the country, of the city. तो I think समय भी बदल रहा है और देखते हैं. I think मुझे तो बहुत उम्मीद है शहर से. एक चीज लगता है कलकत्ता से ज़्यादा क्यों घर में खाना खाता है, क्योंकि ज़्यादा ही घर का जो औरत लोग है मैक्सिमम होम मेकर है, इसीलिए घर में खाना बनता है, घर का खाना खाता है. दूसरा जो चीज़ है कलकत्ता का खाना बाहर से दिखा जाए तो थोड़ा सस्ता भी है. जी जी तो मेन कारण जी हम लोग ग्रोथ बहुत ऊपर चले गए. जी सही बात है. और हम सर टेस्ट समझते हैं, टेस्ट का प्राइस देना समझते हैं. हम उल्टा पुल्टा पैसा नहीं देंगे कुछ ऑर्डिनरी खाना खाने के लिए, हम अच्छा पैसा देंगे अच्छा खाना खाने के लिए. मैक्सिमम रेस्टोरेंट ओनर्स आर मेल्स, बट मैक्सिमम रेस्टोरेंट ओनर्स should be male, right? Why not the homemakers are coming into the restaurant? They are, there's a concept called Nani Ghar, which is run by someone whom I know, where she's working with homemakers. I am thinking, is there any plan of to promote them and to develop a special way? I'll be very candid with you. Actually, हमको ये लगता है कि हमारे रेस्टोरेंट स्पेस में उसमें हम मेल फीमेल नहीं देखते हैं, हम जेंडर डाइवर्सिटी में विश्वास करते हैं. यहाँ की हमारे कुछ ट्रांसजेंडर भी जो हमारे मेंबर्स हैं, जो प्राउड ट्रांसजेंडर्स हैं जो रेस्टोरेंट चला रहे हैं, कुछ शेफ्स हैं, कुछ बारटेंडर्स हैं, कुछ रेस्टोरेंटर्स हैं. बट मैं ये कहना चाहूँगा कि हमने हमेशा जेंडर डाइवर्सिटी रखा है. हमारे मैनेजिंग कमेटी में भी फीमेल्स बहुत हैं. आप देख रहे हो हमारी सेक्रेटेरिएट सपना पूनम दोनों ही फीमेल हैं. तो हमारे लिए तो यार ये बहुत ज़रूरी है कि हम हमारे लिए अच्छा रेस्टोरेंट को सपोर्ट करना हमारा मेन. हम क्या हैं, हम वॉइस ऑफ द इंडस्ट्री हैं, राइट. और इस रिपोर्ट के थ्रू हम हमारी वॉइस को, हमारी इंफॉर्मेशन को आप तक पहुँचाना चाहते हैं, राइट. द वर्ड ऑफ मीडिया, द वर्ड ऑफ माउथ, एंड द वर्ड ऑफ माउथ इज द वर्ड ऑफ मीडिया. तो हम यही चाहते हैं कि आप आप कलकत्ते के बारे में जो अच्छी इनपुट्स आई हैं वो लिखो, ताकि आप और हम मिलके और भी फूड प्रेमियर्स को मोटिवेट कर पाए कि वो इस इंडस्ट्री में आए और इस इंडस्ट्रीज को आगे लेके जाए. ये डिस्पैरिटी आपको काफ़ी इंडस्ट्री में मिलेगा, बट फूड में ये नैरोइंग है, ये वेयर वुमेन एंटरप्रेन्योर्स आर कमिंग इन. आप देखिए क्लाउड किचन्स, देखिए 12,000 क्लाउड किचन्स है, and it has low barriers to entry, so a lot of home chefs who are sort of converting their kitchens into commercial establishment बन रही हैं. So अगर जितना हमारा एवरेज है उसमें आप देखेंगे रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में lot of female entrepreneurs are already coming in. So अगर आप इंडस्ट्री वाइड कंपेयर करेंगे तो we are better off than most here.